Assalamu alaikum, students. Welcome to IT Innovation, a channel where we believe in the power of stories to inspire change, challenge norms, and ignite dreams. Today's video brings you a heart-touching story of determination, education, and family support. You will see how Jamil and Sarah's journey unfolds, proving that with courage, guidance, and a growth mindset, anything is possible. So stay with us to experience how real life values and learning come together. आईटी इनोवेशन चैनल में खुश आमदीद दोस्तों। यहाँ हम आज ऐसी कहानी पेश करने जा रहे हैं जो सोच बदल देगी और जो आपको ख्वाबों की ताबीर में हेल्प करेगी और जिंदगी में कुछ कर गुजरने का जज्बा पैदा करेगी। आज की वीडियो एक ऐसी मुतासिरकुन वीडियो है जिसमें तालीम, हौसला अफजाई और खानदान की सपोर्ट की ताकत को दिखाया गया। जमील और सारा का सफर इस बात का सबूत है, अगर इरादे पुख्ता हो तो ख्वाब हकीकत बन सकता है। तो हमारे साथ रहें और सीखने के इस खूबसूरत तजुर्बे का हिस्सा बने। Jamil entered the courtyard in front of the shabby mud house, walked lazily and collapsed on the charpoy in the middle of the yard under the cool moonlit sky. Looking at Jamil, his father kept his cup of tea on table, dragged his charpoy close to him, and asked, "What's the matter, son? You seem upset." "No, father, everything is fine." "You don't seem okay. Let's have dinner, then we will have talk about it." Jamil's mother, Aunt Saduri, an old family friend, came out of the kitchen with a tray of food and a jug full of water. His sister Sarah and brother Khalid picked up the table and brought it close to their charpoy. जमील खस्ता हाल मट्टी के घर के सहन में दाखिल हुआ, सुस्त रवि से चलता हुआ आया और सहन के बीच में बिछी चारपाई पर गिर सा गया। आसमान पर चांदनी छाई हुई थी। जमील को देखकर उसके वालिद ने चाय का कप मेज पर रखा, अपनी चारपाई खिसका कर उसके करीब की और पूछा, "क्या बात है बेटा, तुम परेशान लग रहे हो?" "नहीं अब्बू, सब ठीक है." "तुम ठीक नहीं लग रहे हो। चलो पहले खाना खा लेते हैं, फिर बात करते हैं।" जमील की माँ और आंटी सदूरी, जो कि पुरानी खानदानी दोस्त थीं, बावर्ची खाने से खाने की ट्रे और पानी के जग के साथ बाहर आईं। जमील की बहन सारा और भाई खालिद मेज को उठाकर चारपाई के करीब लाए। Everybody sat around the table and started eating. Jamil did not move. His father asked him to get up and have dinner. Reluctantly, he got up and started eating. Everybody noticed that Jamil was upset. They cast sidelong looks at him while eating but did not say anything. As soon as they had finished eating and the dishes had been taken away to the kitchen, his mother asked, "Has your result been announced, Jamil? What grade did you get?" सब लोग मेज के गिर्द बैठ गए और खाने लगे। जमील अपनी जगह से न हिला। उसके वालिद ने उससे खाने के लिए कहा। जमील ने बेजारी से उठकर खाना शुरू किया। सबको महसूस हो रहा था जमील उदास है। खाने के दौरान सबने चोरी चोरी उसकी तरफ देखा मगर कुछ ना कहा। जैसे ही खाना खत्म हुआ और बर्तन वापस किचन में ले जाए गए, जमील की मां ने पूछा, "जमील, क्या तुम्हारा नतीजा आ गया? क्या ग्रेड आया?" In a sad tone, he informed everyone that he had achieved a good grade. "So, why are you sad? Has Sarah passed?" asked his father. "Yes, in fact, Sarah has got more marks than me." "Why didn't you tell me before? I was so worried," Sarah complained. "Sorry, Sarah. I was preoccupied with my own thoughts about the future. You see, you don't have to worry about your career the same way that I do." "What do you mean?" Khalid interrupted. उदासी से उसने बताया, उसने अच्छे नंबर लिए हैं। "तो फिर परेशान क्यों हो? क्या सारा पास हो गई?" वालिद ने पूछा। "जी हाँ, बल्कि सारा के तो मुझसे भी ज्यादा नंबर आए। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं कितनी फिक्रमंद थी," सारा ने शिकायत की। "माजरत सारा, मैं अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचों में गुम था। तुम्हें तो करियर की फिक्र नहीं करनी पड़ती जैसे मुझे करनी है।" "क्या मतलब?" खालिद ने मदाखलत की। "She is a girl. She doesn't have to worry about supporting her family. Only men have to worry about earning for their families," Jamil commented. "Come on, Jamil. We don't get education only for earning money. We do it for improving ourselves, and both males and females need it equally. Our Prophet ﷺ has said that seeking knowledge is obligatory for every male and female," Khalid explained. Jamil felt ashamed. "Yes, you're right. I agree with you. I still don't understand. Why are you so worried?" commented father. "क्या मतलब?" खालिद ने मदाखलत की। "वो एक लड़की है,
उसे घर वालों का खर्च उठाने की फिक्र नहीं करनी पड़ती, सिर्फ मर्दों को ही अपने खानदान के लिए कमाई की फिक्र करनी पड़ती है। अरे जमील, हम तालीम सिर्फ कमाई के लिए थोड़ी हासिल करते हैं। खालिद ने कहा, तालीम तो खुद को बेहतर बनाने के लिए हासिल करते हैं, और मर्द और औरत दोनों को यकसां तालीम की जरूरत है। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पर फर्ज है। खालिद ने वजाहत की, हाँ तुम बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो, मुझे तुमसे इत्तेफाक है। जमील शर्मिंदा हुआ, लेकिन मैं अब भी ये नहीं समझ पाया कि तुम इतने परेशान क्यों हो। वालिद ने तबसरा किया, फादर, देयर इज नो कॉलेज इन आवर विलेज or any other village around ours. The only college where I can go is 50 miles away in the city. It seems impossible that I can continue my studies, although I had dreamed that I would become a doctor and open a hospital here for the villagers, as they cannot afford to go to the city hospital. Remember how Uncle Sarmat died last year only because he could not be taken to the hospital on time, Jamil said. अब्बू, हमारे गांव या आसपास के किसी और गांव में कॉलेज ही नहीं है। वाहिद कॉलेज जो है वो शहर में है जो 50 मील दूर है। वहां जाकर पढ़ना मेरे लिए नामुमकिन लगता है। हालांकि मेरा ख्वाब है कि मैं डॉक्टर बनूं और गांव में अस्पताल खोलूं, ताकि हमारे लोग शहर जाने के काबिल ना होने के बायस बेहतर इलाज से महरूम ना रहें। याद है, पिछले साल चचा सरमद सिर्फ इसलिए इंतकाल कर गए क्योंकि उन्हें बर वक्त अस्पताल ना ले जाया जा सका, जमील ने कहा। His mother quoted a Sindhi couplet, which meant, where there is a will, there is a way. Distances are to be covered, she then said. We can ask Allah Bachayo to take you to the city in his horse cart. Auntie Saduri, who had been listening to the whole conversation, said, I have a suggestion. You people have done so much for me. I think now it's my turn to return the favor. Jamil and Sara can easily come and live with me in the city and study in the college. उसकी माँ ने एक सिंधी कहावत सुनाई जिसका मतलब था, जहां चाह वहां राह, फासले तय किए जा सकते हैं। फिर उसने कहा, हम अल्लाह बचाए से कह सकते हैं कि वो तुम्हें अपना घोड़ा गाड़ी में शहर ले जाए। आंटी सदूरी, जो ये सब बातें खामोशी से सुन रही थीं, बोली, मेरे पास एक तजवीज है। आप लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मेरी बारी है मैं एहसान वापस करूं। जमील और सारा दोनों मेरे साथ शहर आकर रह सकते हैं और कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है हम किसी का एहसान वापस नहीं कर सकते हैं, और एहसान करना अल्लाह ताला की सिफत है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जिस तरह भी हमारी ज़ात से किसी को कोई फ़ायदा हो तो उसे पहुंचाएं। और इसमें एक और हमें बड़ी अहम सीखने का मौका मिलता है, वो ये है कि जहां चाह वहां राह, वेयर देयर इज अ विल देयर इज वे। अगर आप जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं तो अपने चैलेंजेस को ओवरकम करने की कोशिश करें, ना ये कि अपना रास्ता चेंज करें। आप हर वो काम कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। आपको अपने ऊपर खुद एतमादी होनी चाहिए और अपनी जिंदगी को कंसिस्टेंट मैनर में आपको गुजारना चाहिए, तो जिंदगी में कुछ हासिल करना मुश्किल नहीं। Really, can I really go and study in the city? Sarah exclaimed. Jamil can go, but Sarah should stay here and help her mother, said father. Sarah quickly wiped the tear that had rolled down her cheek. She didn't want her father to know her feelings. However, Khalid noticed her emotions and said, Father, don't worry about the expenses. Let both of them go. मैं वाकई शहर जा सकती हूँ, सारा खुशी से चिल्लाई। जमील जा सकता है, लेकिन सारा को यहीं रहकर अपनी माँ की मदद करनी चाहिए, वालिद ने कहा। सारा ने चुपके से अपना आंसू पोंछा ताकि उसके वालिद उसकी कैफियत ना समझ सकें, लेकिन खालिद ने उसके जज्बात को भांप लिया और कहा, अब्बू फिक्र ना करें, खर्चे की कोई बात नहीं, दोनों को जाने दें। There's a big medical college as well in our city. Later, both of you can easily continue your studies there and fulfill your dreams, continued Aunt Saduri, addressing Jamil and Sarah. Wow, I will also be a doctor and work at Jamil's hospital. Wonderful. In spite of his worries about managing finance for both of them, father smiled. Soon, both of them went to the city with Aunt Saduri. हमारे शहर में एक बड़ा मेडिकल कॉलेज भी है, बाद में दोनों वहां तालीम जारी रख सकते हैं और अपने ख्वाब पूरे कर सकते हैं, आंटी सदूरी ने कहा। वाह, मैं भी डॉक्टर बनूंगी और जमील के अस्पताल में काम करूंगी, कमाल होगा, सारा खुशी से चिल्लाई। बावजूद माली फिक्रों के वालिद मुस्कुराए। जल्द ही दोनों आंटी सदूरी के साथ शहर चले गए।
Living in the city, attending college, and then the medical college was not a bed of roses. Both siblings had to work extremely hard to pass all the exams on the first attempt. They could not afford to fail in any subject. To meet the expenses, both of them gave tuitions to children in the neighborhood. Their parents never let them know the problems they faced during all this time. शहर में रहना, कॉलेज जाना और फिर मेडिकल कॉलेज में तालीम हासिल करना आसान न था। दोनों बहन भाइयों को सख्त मेहनत करनी पड़ी। उनके पास किसी मजमून में नाकाम होने की गुंजाइश न थी। अखराजात पूरे करने के लिए दोनों बहन भाई हमसाए के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते। उनके वालिदैन ने भी कभी उन्हें अपनी माली मुश्किलात का एहसास ना होने दिया। In the fourth year, father and Khalid had to sell a big piece of fertile land to pay their fee. The whole family bore the hardships because they wanted their children to realize their dreams and to work for the betterment of the villagers. यूनिवर्सिटी के चौथे साल में उनके वालिद और खालिद को फीस अदा करने के लिए अपनी ज़रख़ेज़ ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा बेचना पड़ा। पूरी फैमिली ने कुर्बानियां दी ताकि उनके बच्चे अपने ख्वाब पूरे कर सकें और गांव वालों की खिदमत कर सकें। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि आपके ख्वाब के लिए आपके घर वाले भी आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। तो आपका काम यह होना चाहिए कि जो भी आपकी मंजिल है, जो भी आपका डेस्टिनेशन है, जो आपने सेट किया है, उसके लिए लग जाएं, अंत तक मेहनत करें और कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अब आते हैं हम कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ, जो तकरीबन 12 साल के बाद, जिसमें आपने देखा कि सारा और जमील ने अपना प्रोफेशनल जो स्टडीज़ हैं या फ्यूचर स्टडीज़ हैं या करियर की स्टडीज़ हैं, वो कहाँ से शुरू की? मैट्रिक क्लास के बाद से, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर से। तो अब उनका कॉलेज का सफ़र और उनका प्रोफेशनल लाइफ का सफ़र कैसे इख्तिताम पजीर हुआ, ये आपको कहानी के नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। Uncle Noor Ali, you should not eat rice, potatoes, and sugar, Jamil advised his patient politely. Okay, son, I will follow your advice. Jamil held the old man's weathered hand and helped him walk outside the impressive hospital building, standing against the backdrop of lush green fields. For a moment, he looked up at the building that portrayed his dreams. He asked Allah Dinu, are there any more patients? नूर अली चाचा, आपको चावल और आलू और चीनी नहीं खानी चाहिए। जमील ने नरमी से मशवरा दिया। ठीक है बेटा, मैं आपकी बात मानूंगा। जमील ने बूढ़े शख्स का झुर्रियों भरा हाथ थामा और उसे अस्पताल की शानदार इमारत से बाहर ले गया, जो सरसब्ज खेतों के पस मंजर में वाक़ थी। एक लम्हे के लिए उसने अस्पताल की तरफ देखा जो उसके ख्वाबों की ताबीर थी। उसने अल्लाह डेनो से पूछा, और कोई मरीज बाकी है? No, there's no more patient, replied Allah Dinu. Okay, then call Dr. Sara so that we can go to the neighboring villages and examine the patients there. After visiting two nearby villages, Jamil dropped Sara at her house where her two young children were waiting for her. Jamil was very happy because Sara had hosted a successful seminar for the village women and guided them to improve their personal and family health and hygiene. नहीं, सब मरीज देख लिए गए हैं, अल्लाह डेनो ने जवाब दिया। ठीक है, तो फिर डॉक्टर सारा को बुलाओ ताकि हम आसपास के देहातों में जाकर मरीजों का मायना कर सकें। 2 देहातों का दौरा करने के बाद जमील ने सारा को उसके घर छोड़ा, जहां उसके 2 नन्हे बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। जमील बहुत खुश था क्योंकि सारा ने दही खवातीन के लिए कामयाब सेमिनार मुनक्किद किया था, जिसमें उन्हें सेहत और सफाई के उसूलों से आगाही दी गई थी। He then drove home in his small jeep, satisfied with the day's work. Come on, let's have lunch, said his wife with a beaming smile. Lunch? You mean you people have not had lunch as yet? He exclaimed. No, we are waiting for you, said his parents simultaneously. Okay, then let's have lunch together. Everybody washed their hands one by one and moved towards the dining table. फिर जमील अपनी छोटी जीप में घर वापस आया, दिली सुकून के साथ। चलें अब खाने पर आए, उसकी बीवी ने खुशदिली से कहा। खाना? क्या तुम लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया? उसने हैरानी से पूछा। नहीं, हम आपका इंतजार कर रहे थे, उसके वालिदैन ने एक साथ जवाब दिया। तो फिर आइए सब मिलकर खाते हैं। सब ने बारी बारी हाथ धोए और दस्तरखान की तरफ बढ़ गए।
At night, Jamil lay on his charpoy in the middle of the yard under the cool moonlit sky and thought about the long journey of his life and all the hardships that he and his sister Sarah and their family had borne to fulfill their dreams. He felt truly grateful and blessed. रात को जमील अपनी चारपाई पर लेटा ठंडी चांदनी रात में आसमान को तकता रहा। वो अपने माजी के सफर, अपनी बहन सारा और अपने खानदान की कुर्बानियों को याद करता रहा। वो दिल से शुक्रगुजार था और खुद को बेहद खुश नसीब महसूस कर रहा था। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा, अगर लगन सच्ची हो तो आपके ख्वाबों की ताबीर हासिल करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और ये एक सच्ची कहानी है और इस तरह की और भी कई कहानियां आपको मिलेंगी जो आपको ये सबक दे रही हैं कि अपनी ड्रीम को चेस करने के लिए जो चैलेंजेस आपको फेस हो रहे हैं उनको बहादुरी के साथ उनका सामना करें और किसी भी लम्हे ये ना सोचें कि हम ये नहीं कर सकते। यू कैन डू दैट, आई कैन डू दैट। आपको ये कहना है अपने आप से कि मैं जो चाहूं कर सकता हूं और रिमेन ऑप्टिमिस्टिक। अपने गोल की अचीवमेंट के लिए भरपूर कोशिश करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप मज़ीद सबक आमोज़ वीडियोस हासिल कर सकें। थैंक यू सो मच।